morning students, I welcome you all into online classes of SGOI. So in the last class we have completed chapter number 25 that was based upon the graphical representation. Chapter number 26 is also based upon the same thing, which is the graphical representation of the statistical data. So in this chapter we will be learning about the various methods to represent the data. Okay, different methods हम सीखेंगे in order to represent the data. First one is bar graph. First one is the bar graph, which is a method of representing the data. Bar graph को column graph भी बोलते हैं. Bar graph is also known as the column graph. Okay. So directly we will be starting with the questions because questions से ही आप सीख पाएंगे कि हम लोग बार ग्राफ एक्चुअली बनाते कैसे हैं. ठीक है. So in exercise 26A, question number 1, there is a table given of subject and the percentage of marks obtained. ठीक है. टेबल given है आपको. Subject and percentage of marks. We have the subject, first one is Hindi, then we have science, English, maths, and then social studies. Percentage in Hindi is 35, percentage in science is 60, in English 15, in math 75, and in SST 40%. Now you have to represent this data with the help of a bar graph or a column graph. Okay. So first of all we will be using a graph paper, and in graph paper we will be drawing a vertical line like this, which is known as the y-axis. Then a horizontal line which is known as the x-axis. Okay. This y-axis is particularly used for the representation of the percentage of marks, and this x-axis is used for the representation of the various subjects. ठीक है. यहाँ पे जो भी आप प्लॉट करेंगे परसेंटेज को, उसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज यहाँ पे है 0, this one is 5, okay, this one is 10, then 15, then you have 20, 25, 30, 35, 40, 45. I'll be supposed to be writing this. Then we'll have 50, 55 and so on. Okay. Now the first subject is Hindi. तो यहाँ पर लोग लिखेंगे हिंदी. And it is saying that in Hindi you have obtained 35% marks. So we will be looking into 35 कहाँ पे ये? A vertical line will be drawn over here, and एक column लेकर के एक और vertical line इस तरीके से draw होगी. So this will be the building, or you could say a bar graph for the subject Hindi. Then moving to the second subject, which is science. Science is 60 है, 60 might come over here. ठीक है. तो second is science. एक ब्लॉक छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइंस, एंड देन अगेन वी विल बी गोइंग टू द परसेंटेज ऑफ साइंस व्हिच इज 60. तो यहाँ से आएंगे और वी विल बी ड्राइंग लाइक दिस. सो दिस विल बी योर साइंस. ओके. देन मूविंग टू थर्ड वन व्हिच इज इंग्लिश. इन इंग्लिश वी हैव स्कोर्ड 15%. 15% के सामने कहाँ पे आएगा ये? दिस विल बी गिविंग अस आवर इंग्लिश. दिस इज इंग्लिश. ओके. दिस वन इज इंग्लिश. देन मैथ्स के लिए 75 है ना. इस स्पेस का मैं आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक 75 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप मैथ्स का कॉलम या फिर बार क्रिएट कर देंगे. देन कमिंग टू एसएसटी. एसएसटी आपका 40 है. 40 देखेंगे यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली. So this will be 40 for SST. Okay. So this is the method how you will be preparing the bar graphs. Okay.
So from question number 1 to question number 5, they all have the similar kind of approach. Now moving to question number 6. In question number 6, a bar graph has already been given to you, and you have to interpret the bar graph and then answer the questions which follow. Okay. So in question number 1, they are saying that first of all you have to study the given bar graph carefully and answer the questions which are given in the question number 6. So you are supposed to be looking into the question into your books. It is representing the subjects and the marks obtained in various subjects. First question, they are saying that in which subject was Varun's performance the poorest? Justify. ठीक है, it is saying कि in which subject Varun's performance was worst or the least, and you have to also justify that thing. So you can clearly observe that in social science Varun has secured 80 marks. Okay, so answer would be the poorest performance is in social science because it is the subject which has fetched him the least marks. इस सब्जेक्ट में उसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं, therefore this is the poorest subject of him. Okay, moving to the second question. What is the ratio of the marks obtained by Varun in mathematics to that of the social studies? Okay, so it is saying कि maths रेशियो SST का मार्क्स आपको बताना है. तो ग्राफ में देखेंगे मैथ्स में के सामने कितने मार्क्स हैं. In front of maths we can clearly see कि marks are around 97. Okay, maths में marks 98 या 97 के अप्रॉक्स है. रेशियो SST में मार्क्स कितने हैं? In SST मार्क्स आर अराउंड 82. 80 है 82. ठीक है, इसको रिड्यूस कर देंगे एंड यू गेट द रेशियो ऑफ द मार्क्स obtained in maths to the social science. ठीक है, the graph here represented is not that clear. इस वजह से आपका जो evaluation है वो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है. that's not a problem here. बस you should be able to understand कि हम लोग कैसे बार ग्राफ को रीड करते हैं. ठीक है, so that is all. और आप इस तरीके से एक्सरसाइज A जो 26A है आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं. Moving to exercise B. In exercise B, they are telling you how to create the histogram. Histogram किस तरह से आप create करेंगे. Okay, so पहले जो starting के 3 questions है उसमें तो आपको histogram पहले से given है और उसको देख करके आपको answers करने हैं. ठीक है, so I think ये आप अपने आप से easily कर पाएंगे. 26B का question number 1, 2 and 3. Now I'll be telling you question number 4. Okay, question number 4 I'll be telling you. You are supposed to be keeping attention on the board. So in 26B question number 4, first of all एक टेबल बना हुआ है marks obtained. ठीक है, marks obtained और number of students. ठीक है, marks obtained and number of students. Okay, so first is class interval दिया है 0 से 10. 0 से 10 कितने मार्क्स बच्चों को मार्क्स मिले हैं? So it is 2. 2 बच्चों को 0 से 10 मार्क्स मिले हैं. Next is 10 to 20. 10 to 20 the number of students हैं आपके 3. Then 20 to 30 you have number of students 14. Then first of all पूरा लिख लेते हैं, इसको 70 तक जाएगा. Then 30 to 40, then 40 to 50, then 50 to 60, and then 60 to 70. ठीक है, 14 के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, 6, 5, 6, 5, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70,
एंड देन 70 to 80 भी एक है, 70 to 80, ठीक है। 60 to 70 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास 8 और 70 to 80 में है आपके पास 2 स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको क्रिएट करना है, तो फिर से वही काम करेंगे, एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और एक इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हिस्टोग्राम है वो 0 से ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कहां तक गया है, 14 तक गया है। इसी हिसाब से हम लोग इस y एक्सिस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको ग्राफ पेपर का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन थिंक कि अगर मान लीजिए ये आपका 1 है, दिस इज योर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, ठीक है। Suppose these are the various marks for 1 2 3 4। यहाँ पर क्या प्लॉट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट कर रहे हैं। We are plotting here number of students। We are plotting here number of students और यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, उसका मार्क्स ऑब्टेन जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो पहला क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है आपका, 10 से 20, देन 20 से 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, ठीक है। तो these are the various class intervals, ठीक है। Now what we have to do, 0 से 10 में कितने लोग हैं, 2, तो 1 2, तो कितना बड़ा बनेगा ग्राफ, this will be the ग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, बार ग्राफ के बीच में डिफरेंस देते हैं आप, गैप देते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं देंगे, लगातार ही बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 10 से 20। 10 से 20 कितने लोग हैं, 3 लोग। 10 से 20 कितने हैं, 3 लोग, 1 2 और 3, मतलब कि यहाँ पे ये आएगा, दिस विल बी फॉर 10 to 20, 3 के सामने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 20 से 30। 20 से 30 कितने हैं, 14 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, ये वाला आएगा सबसे लास्ट वाला, तो ऊपर तक ले जाएंगे इसको एंड दिस विल बी द सीन फॉर द 20 से 30। 30 से 40 के लिए कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, बिलो द 14 13 12 11 and 10, 10 यहाँ पे आएगा, so this will be, आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, ठीक है। नाउ 40 से 50 में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 6 कहाँ पे आ रहा है, दिस इज हियर, एक स्केल रखेंगे ऐसे, हमें पता नहीं यहाँ पे आएगा ये ना एग्जैक्टली, तो 40 से 50 के लिए दिस विल बी द सिनेरियो, ठीक है। 50 60 के लिए 5 लोग हैं, 5 के लिए दिस विल बी द सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो वहाँ पे पहले से ही लाइन बनी होती है इस तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन 60 से 70 में 8 लोग हैं, 8 कहाँ पे आया, दिस इज द सिनेरियो हियर, दिस विल बी द सीन फॉर 60 to 70। नाउ 70 to 80 में 2 लोग हैं, so this will be the scene for the 70 to 80। so this is your histogram and this is how you will be preparing this, okay। जब कभी भी क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो तो आप उसके लिए पहले यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। सपोज इस तरीके से बनता है, 0 यहाँ पे होता है, लेकिन अगर आपका क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहले आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है 70 to 80, यहाँ पर 70 लिखेंगे, यहाँ पे 80 लिखेंगे। यहाँ पे zigzag इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इसके पहले का डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग किंग बोलते हैं, वी कॉल इट किंग, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू स्किप द क्लास इंटरवल व्हिच इज नॉट गिवन फ्रॉम 0, ओके। चलिए मूविंग फॉर द one more thing is that which is known as pie chart। how you will be preparing a pie chart, now हम ये देखेंगे।
पाई चार्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक सर्कल के अंदर बनता है, ठीक है। पाई चार्ट इज ऑलवेज ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। नाउ इसको डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग किस तरीके से इसको ड्रॉ करें, ठीक है। आप जानते हो कि जो इसका सेंटर, जो इसका पूरा एंगल होता है कंप्लीट, वो 360 डिग्री का होता है ना। अ सर्कल, यू नो दैट अ सर्कल कंप्राइज ऑफ 360 डिग्री। जो आपका सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से डेटा को फिट करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ टेबल हैज बीन गिवन टू यू, जहां पे आपको बोला गया है कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट इज बीस्ट एनिमल्स, जो बीस्ट एनिमल्स है मैं बीए से लिख रहा हूं उसको, वो कितने हैं आपके पास 120, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है आपके पास अदर लैंड एनिमल्स, अदर लैंड एनिमल्स को एलए में लिख रहा हूं, दे आर 400, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बर्ड्स, ठीक है, यू हैव बर्ड्स। बर्ड्स कितने हैं आपके पास, यू हैव 170। नेक्स्ट आपके पास है वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, WA 135 वाटर एनिमल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स 75 आपके पास, ठीक है, यू हैव 75 रेप्टाइल्स। तो दिस इज द डेटा व्हिच हैज बीन गिवन। अब आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में आप टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमें मेन ये देखना होता है कि हर एक के पार्ट में कितना डिग्री का एंगल आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्राफ बनता है वो अकॉर्डिंग टू द एंगल बनता है। हम ये देखेंगे कि ये आपका जो बीस्ट एनिमल है उसके लिए कितना एंगल होगा, ओएलए के लिए, अदर लैंड एनिमल के लिए कितना एंगल होगा, इस तरीके से सबके लिए कितना कितना एंगल होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूं आपका बीस्ट एनिमल BA, ठीक है। इसका आपके पास कितना अमाउंट दे रखा है 120 है इसमें। अब यहां पे लिखेंगे इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सेंट्रल एंगल, यहां लिख रहा हूं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बीस्ट एनिमल्स कितने हैं आपके पास 120 अपॉन करेंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, इन सभी को ऐड करोगे आप। तो पहले ही दे रखा है कि 900 क्रिएचर्स हैं, तो टोटल कितने हैं 900, ठीक है। नाउ आपको पता है कि पूरा एंगल कितने का है 360 डिग्री का है। इसका मतलब है कि इसके हिस्से में कितना एंगल आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 360 करना पड़ेगा आपको। तो यू विल गेट 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 9 10 जा एंड 9 4 जा 36, 0 से 0 होगा, 12 4 जा 48। इसका मतलब है कि जो आपका बीस्ट एनिमल है उसके लिए एंगल कितना होगा 48 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड में कौन सा आपका अदर लैंड एनिमल, वो LA कितने हैं ये 400। इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, ऊपर लिखेंगे 400 अपॉन टोटल कितना है 900 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से 0 0 से 0, 9 1 9 and this will give us 9 4 36, 40 into 4 this will give us 160 डिग्री। इसका मतलब है कि अदर लैंड एनिमल के लिए कितना एंगल आएगा 160 डिग्री। नाउ मूविंग टू द थर्ड, बर्ड्स। For birds we have the quantity which is equal to 170, this will be 170, again central angle फाइंड करने के लिए 170 upon 900 multiply by 360, 17 4 जा 68, that means angle for birds will be 68 degree. Now next category is water animals, water animals WA,
इनका क्वांटिटी कितना है? दे आर 135 इन नंबर, 135। फिर से वही करेंगे 135 अपॉन 900 इंटू 360। 0 से 0 एलिमिनेट होगा, यू विल गेट 9 10 the 90, 9 4 जा 36, then you can get 2 2 the 4 and 2 5 the 10, then 5 the 5, 5 से काटेंगे तो you will get 5 to the 10 and 5 to the 35, 27 into 2 54 degree। that means we can say that जो आपका ये होगा WA that is water animal, इसका एंगल होगा आपका 54 डिग्री। नाउ लास्ट कैटेगरी है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कितने हैं? 75। सेंटर एंगल कैसे निकलेगा? 75 अपॉन 900 into 360, 0 0, this will again give us 9 10 जा, this will 9 4 जा, then again 2 जा, this 5 जा, 5 1 जा, 5 5 5 25, 15 to the 30 degree। so we can clearly say कि जो रेप्टाइल्स के लिए सेंटर एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। नाउ बारी आती है इसमें इसको इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर भी होगा, ठीक है। सेंटर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ पहला कैटेगरी है आपका BA दैट इज बीस्ट एनिमल्स। एंगल कितना है? 48 डिग्री। उसके लिए आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, जहां पे प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। उससे मेजर करेंगे आप 48 डिग्री। सपोज 48 डिग्री इस तरीके से आएगा, दिस विल बी द पोर्शन फॉर द बीस्ट एनिमल्स, और यहाँ पे आप लिख देंगे बीस्ट एनिमल 48 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास OLA दैट इज अदर लैंड एनिमल। इसके लिए क्या करेंगे? आप प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे ताकि प्रोटेक्टर का सेंटर फिर से यहाँ आए, लेकिन इंक्लिनेशन कैसा होगा? ऐसा होगा। यहाँ से आप मेजर करेंगे 160 डिग्री, ठीक है। तो वी नो दैट 160 डिग्री करीब इस तरीके से आएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये आ जाएगा आपके लिए अदर लैंड एनिमल्स के लिए, एंड दिस एंगल विल बी 160 डिग्री, ठीक है। ये सब मेजर करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? 68 डिग्री। फिर से क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे आप कितना? 68 डिग्री, ठीक है। सो इट माइट कम समथिंग लाइक दिस। तो ये जो होगा आपका 68 डिग्री होगा, एंड दिस विल गिव यू द आइडिया फॉर द बर्ड्स, ठीक है। दिस विल बी फॉर द बर्ड्स, ठीक है। इतना जो पोर्शन बचा है उसके लिए मेजर करेंगे WA और रेप्टाइल्स। फिर से यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द एंगल फॉर द वाटर एनिमल्स WA 50, और बाकी ये बचा हुआ ऑटोमेटिकली 30 डिग्री बचेगा, एंड दिस विल बी फॉर योर reptiles। So this is how you will be creating the pie chart with the help of the this central angle as well as with the help of the protector। So that is all in today's class। In the next class I will be telling you the one question in order to interpret the pie chart, ठीक है। Thank you।